are negative. By this you can remember these basic formula easily. And the last topic which we are discussing was differentiation of function of the function. Means when two or more than two functions are combined and new function has been formed, how to get differentiation of this new function. We have already done 2-3 questions. Again we are doing 1 or 2 questions from 5.2 exercise. But it is very sad you people are not solving question, not sending to me so that I can see. So I am just doing one and rest you have to do. I will give the 5-minute break. You have to do the question and send the copy to me. Then only we will continue the class. Firstly we are going to do question number 1. Sin x square plus 5. As I told you, we have to suppose first function. This is first function. So let x square plus 5 is t. So y will be sin t. Now there may be a doubt whether x square is first function or x square plus 5 is the first function. So if any constant is there, this will be considered a part of first function. It is not that you have to suppose x square as t, then x square plus 5 is another variable. No, because it is constant, you can consider the whole term as a first function of x, that is t. So our y will become sin t. Now y is a direct function of t. So no substitution is required. Now we can start our differentiation. So differentiating with respect to x, dy by dx of y is dy by dx of sin t. Simply differentiating both the sides. Now this is not similar variables. So we will get the differentiation of sin t with respect to t, and then differentiation of t with respect to x. This is chain rule, we have already discussed. Then the value of t will be substituted here. So that the function and differentiation should be in the same variable. Now you have to differentiate. Now you have to use the identity. Sin t is cos t, differentiation of sin t, and differentiation of x square is 2x, and constant function 0. Now t differentiation has been done, so we will replace the variable t, the value of t in terms of our original variable. So it will be cos x square plus 5 into 2x. That is the answer. Any doubt in any step, then you can ask. We are doing differentiation of function of the function. In previous class also we have solved some questions. Now you have to do question number 2, that is cos of sin x. Y is cos of sin x. You have to, each one of you have to solve this question in this manner. Send the photo for me on my personal window, then I will continue the class. Because you are not sending the homework, no one is doing any question, so I am doing this another method.
I know it is not good, but you will have to do it. You have to follow it. Are you listening? Start doing the question. Okay. आदित्य ठाकुर लिखो. आदित्य निखिल बेदी. भूपेंद्र लिखा है. कितने हैं? 7 हो गए ना. अंकित पटेल है अभी. ठीक है, अटेंडेंस डाल देंगे. अटेंडेंस मोबाइल से हुई थी. निशिता. Nishita, Yes, sir. you are 15 minutes late. I have already explained one question. You see it, and I have given a one question to homework. So, y equal to sin x square plus 5 is first question of 5.2. First function of x square plus 5. So it has been supposed as t. Then after putting the value over here, it is y equal to sin t. Now differentiating with respect to x. Why we have supposed this t? Because the y is not a direct function of x. It is function of x. So we have supposed first function as t and converted y as a function of t, direct function of t. After this, you have to differentiate with respect to x. So writing dy by dx. Since it is x, it is t, so we have to change the variable. We will differentiate sin t with respect to t, and t will be differentiated with respect to x because t is the function of x. So similar variable must be there. The value of t will be substituted here. Then we will apply the formula. Sin t differentiation is cos t, x square is 2x and 5 is 0. And then we will put up the value of t. So this is the answer. Similarly, you have to do this question. So write and start question number 2. I have given some time to everyone so that they can solve the question. They will click the photo and send it on me. I will see, then only the next question will be started. Those who have solved the question and send the pic to me, they will tell me that I have sent. Just give your name or type the message that I have sent the pic.
Are you listening? Fine, very good. One reply has come from Bhupen. He has sent the question. Waiting for others. Till then, Bhupen, you can write down these are some additional result, additional identities or the formula of differentiation that you have to learn. Okay. Those who have sent the pic will send the message to me that I have solved the question and send the pic to me, so that I will come to know how many of you have solved the question now. Only one of you have sent the pic so far. छोटू ऐसा करो, लैपटॉप ऑन करके रख लो इधर. लैपटॉप इधर रख ताकि दिखता रहे. उसमें व्हाट्सएप खोल लो, किस किस ने क्या क्या भेजा वो दिखाई देता रहेगा. बैठ जा, कर लो. Okay, Ankit Patel, number 2, very good. So far 2 children. I am seeing on laptop by opening WhatsApp that how many of you have sent and what mistake you are making. Charging लगा लेना. Others are taking too much time. It's just a 2 minutes work. Okay, Mukul is third. भूपेन का खोलो. तुमने भूपेन लिसन सी योर कॉपी. आपने नीचे वैसे वहीं दिख जाना है. डी वाई डी अपॉन डी एक्स क्यों लिखा है? डी वाई ऐसे नहीं लिखना है. सी भूपेन व्हाट डिड यू राइट? आई एम सीइंग हियर डी अपॉन डी कॉस साइन एक्स ऐसे लिखा है आपने. डी वाई बाई डी एक्स इज डी कॉस साइन एक्स अपॉन डी एक्स. ऐसे नहीं लिखना है. डी अपॉन डी एक्स स्टार्टिंग में लिखा जाता है सेपरेट ऐसा. ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे, साथ में ही रहेंगे और ऐसे आएगा. इज दैट क्लियर भूपेन? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट अंकित. ओपन द अंकित व्हाट्सएप. ऐसे ही रहने देंगे. अंकित का देख रहा हूं मैं. आपने टी किसको लिया? एक हिला मत ना अभी.
ऐसे करनी। साइन एक्स को टी लिया तो वाई हो गया कॉस टी, यहां तक तो सही है। लेकिन उसके बाद अंकित पहले टी सपोज किया है तो टी ही लिखेंगे, थीटा कहां से आ गया उसमें? जब आपने लिखा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस टी, इसको टी सपोज कर लिया आपने, लिखा है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस टी। इसके बाद टी ही रहेगा वेरिएबल, थीटा नहीं आएगा। आर यू गेटिंग अंकित? यस सर। मिस्टेक समझ में आया? हाँ सर। टी की जगह टी ही रहना है, थीटा नहीं रहेगा। बाकी तो ठीक है, वेरिएबल चेंज कर दिया आपने, रेस्ट इज ओके। नेक्स्ट थर्ड देखो, किसने भेजा था थर्ड? मुकुल। ये भूपेन का है। हाँ नहीं, मुकुल का खोलो ना, ये है शायद मुकुल का। क्या नहीं ये भूपेन है। पेन का तो देख लिया ना अपन, दोबारा भेजा था। नहीं भूपेन का कहाँ दिखा आपको? पहला उसी का था सबसे पहले। व्हाट्सएप खोलो, व्हाट्सएप नीचे जाके मुकुल, ये मुकुल का ही है। मुकुल का है। मिला मत यार। मुकुल, आपने डी वाई डी टी ऑफ वाई लिखा हुआ है। ये देखिए, ये कितना क्लियर लिखा है। पहले वाई में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। दोनों साइड वाई के साथ इधर आएगा और इधर आएगा। तो आपने क्या किया है, डी वाई बाई डी टी लिखा है कॉस टी, और डी वाई बाई डी इक्वल का साइन शुरू में लगा दिया है। इक्वल का साइन यहां नहीं लगाना है। मुकुल, आर यू गेटिंग, लिसनिंग और नॉट? मुकुल, यस सर। हाँ, व्हाट मिस्टेक यू हैव मेड, यू हैव रिटन इक्वल हियर। आपने यहाँ इक्वल लिखा था, उसके बाद आपने उसको हटा दिया। आपने इसको लिखने के बाद ऐसे रब कर रखा है, कैंसिल कर रखा है। ऐसे नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए ना, ये लेफ्ट साइड है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों साइड डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और दोनों साइड डी वाई बाई डी एक्स आएगा तो यहां पर ये सिंबल है, ये बता रहा है कि इसका रेट ऑफ चेंज क्या है। ये जो डी वाई बाई डी एक्स हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, दिस इज इंडिकेटिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दिस इज योर फार्मूला ऑफ फंक्शन। तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, फंक्शन टी की टर्म्स में रहेगा। ये पहले हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया है, इसके बाद यहां पर चेन रूल किया है, यूजिंग चेन रूल। चेन रूल में टी को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो टी का फंक्शन है, और फिर जो इंडिविजुअल टी है वो एक्स की टर्म्स में होगा। फिर टी की वैल्यू रखी जाएगी एक्स की टर्म्स में। ये आपको करना है, सीधा डिफरेंशिएट नहीं करना। पहले ये चीजें सही होनी चाहिए। और किसी ने भेजा, आदर्श राजपूत। आदर्श, आई एम ओपनिंग योर आंसर। नहीं होता क्या? अच्छा एक बार करो। हाँ, you need to find differentiator with respect to x, y dash is cos sin x। आदर्श डैश नहीं लगाना है। सॉरी बेटा, जो बोर्ड पे बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए, ये इजी है। अदरवाइज मैं एक एक कैसे सारी मिस्टेक डिस्कस करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आप सभी लोग सुन लो। अच्छी बात यह है कि आपने ट्राई किया, सेंड किया, यू फॉलोड मी, इट इज एप्रिशिएबल, बट follow each and everything which is discussing on the board. Like what you have written, y dash is cos sin x whole dash. Y dash is cos sin x whole dash. अभी मैथमेटिकली देखा जाए तो रॉन्ग नहीं है। डैश मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है, तो यहां भी आपने डैश लगाया, यहां भी डैश लगाया, तो मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है। लेकिन हम एक पैटर्न सीख रहे हैं जिसमें हमें बाद में स्प्लिट भी करना पड़ता है।
अब ये डैश का मतलब डिफरेंशिएशन है, लेकिन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी है या एक्स है? यहाँ तो हमें दोनों को स्प्लिट करना है ना, एक्स की टर्म्स में अलग दिखाना है, टी की टर्म्स में। अब इसमें डैश कैसे स्प्लिट करोगे आप? दोनों पर डैश लगेंगे, मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन एक्स के रिस्पेक्ट में है और कौन टी के रिस्पेक्ट में। अदर्स, आर यू गेटिंग? अदर्स, टेल मी। Others is present or not? Others? Not present. He is left. Okay, तो ये मिस्टेक थी जो नॉर्मली, और किसी का है देखो व्हाट्सएप, राजपूत नहीं अदर्स राजपूत का तो आ गया, और किस, हु एल्स हैज सेंड? इस तरह से आप जब तक क्वेश्चन भेजेंगी नहीं, अपने आंसर नहीं भेजेंगी, आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं मालूम ही नहीं चलेगा। सो वन मोर यू हैव टू डू एंड यू हैव टू सेंड द पिक। पहले अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं मैं। निशिता, निशिता का देखो। यस निशिता, आई एम ओपनिंग योर आंसर। निशिता, आपने पहला स्टेप तो ठीक किया, साइन एक्स को टी लिया, उसके बाद कॉस टी लिखा है, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, लेकिन ये स्टेप नहीं है, ये स्टेप भी नहीं है, ये स्प्लिटिंग वाला पार्ट भी नहीं है। आपने सीधा ये डिफरेंशिएशन कर दिया और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बजाय कामा लगा रखा है आपने। कामा का मतलब हो जाता है दोनों सेपरेट हैं, तो आपको वहां पर, और डी वाई बाई डी टी ऑफ कॉस एक्स सेपरेट लिखा हुआ है आपने। अच्छा, आपने ये नहीं करना ना, देखिए ये जो मैंने यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस टी लिखा है, आपने क्या किया, ये फार्मूला लिख दिया बीच में, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। उसकी जरूरत नहीं है, आप सीधा दोनों के साथ सेपरेट डी वाई बाई डी एक्स लगाइए और इसका डिफरेंशिएशन लिखिए, इसका डिफरेंशिएशन लिखिए। आपको यहाँ बीच में कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो उसको मेंशन नहीं करना, और अगर आपको करना ही है तो आप रफ कॉलम में लाइन ड्रॉ करके राइट हैंड साइड में लिखिए। जो सॉल्यूशन चल रहा है उसके बीच में फार्मूले लिखने से कई बार कंफ्यूजन हो सकता है एग्जामिनर को।